Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Amir Nazir. I am here with the topic communication, the introduction. Before this, I only made the videos for commerce students, uh, which were related to the accounting topics like financial statement, journal, ledger and trial balance, and so on, which only helps the commerce students. But obviously, as you see the topic name, it is important for all of us because we are human and we always communicate not only with ourselves but with the others outside the world. Obviously, we continuously busy thinking, we see, we listen, we speak, we write, we read. All these things are basically the communication. It is called communication. So obviously, this is very important for all of us. Uh, if we are students or we are doing job or we have own business, we have to communicate with others. So that's why I made this video, and inshallah this video will help you out to understand the basic concept of communication and the effectiveness of communication in your life. So what we have today? Yes, we have 4 learning outcomes. We will discuss the definition of communication. After that, the difference between communication and business communication, and then process of communication and types of communication. So what is communication? Communication is basically, it is the process, it is the system of sharing the information. One person is sharing information with another person or a group of person. So this is communication. It means one person is communicating with another person. You are talking to your friend orally or on message or on call, or even you are talking with someone through your body language. All these are communication. A process of giving, receiving or exchanging ideas, data, information, signals or messages through appropriate media. Obviously, different medias, different channels you can use to share your idea. What is idea? Idea is what inside your mind. You think something and you share with someone else. So obviously the idea which is inside your mind, when you share it, it becomes information. The data, obviously if you are doing some work, so something you get is the data, and on the basis of data you get the information. So any information, any data, any idea you share, or obviously you receive from someone or you share with someone, all these things are creating a process, and this process is called communication. हम किसी भी इंसान से बात करते हैं, रिटर्न करें या ओरली करें, या हम अपने बॉडी लैंग्वेज के थ्रू करें, मतलब इशारों से करें, ये सब कम्युनिकेशन है. द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू गिव द राइट मैसेज to the right person or the right time at the right place. It is a very important thing to understand. Message should be right and it should be given to the right person. For example, I want to buy a milk, 1 kg milk or 1 liter milk. So what will I have to do? Obviously I will go to the milk shop and I will ask about the milk. अगर मैं मिल्क शॉप की जगह वेजिटेबल शॉप चला जाऊँ और मुझे मिल्क परचेज़ करना है और मैं उससे कहता हूँ कि जी मुझे एक किलो दूध दे दो, सो इट मीन्स दिस इज़ नॉट द राइट मैसेज यू आर कन्वेइंग बिकॉज द पर्सन इज़ नॉट राइट. दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन. द राइट पर्सन वॉज द मिल्क सेलर, बट यू डिडंट गो टू द मिल्क सेलर, अदर you are going to buy milk from vegetable seller. It means the message is not right, the person is not right. Or maybe the message is right, the person is right, but the time is not right. Shop बंद है, आप चले गए, तो that was not the right time. At the right place, जगह भी right होनी चाहिए. For example, if you want to ask about the favor from your boss, आपको छुट्टी चाहिए और आप अपने बॉस से फेवर चाहते हैं,
तो आप ये मैसेज कैसे कन्वे करेंगे? आप उसका मूड देखेंगे, कैसा मूड है। आप ये देखेंगे भाई ये बात करने का टाइम है या नहीं है। आधी रात को फ़ोन करके अगर आप बात करेंगे तो वो बॉस कभी आपको ऑफ नहीं देगा, वो हमेशा के लिए ऑफ दे देगा, आपको बोलेगा आप जाओ। आधी रात को कौन फ़ोन करता है? आपने तो मेरी नींद ख़राब कर दी। तो ऑब्वियसली राइट टाइम का होना भी ज़रूरी है, मैसेज भी राइट हो। राइट मैसेज मीन द डिलीवरी, यानी छुट्टी मांगने का तरीका। 10 बंदे छुट्टी मांगते हैं अलग अलग तरीक़ों से, सही है ना? तो हमने राइट वर्ड्स चूज़ करने होते हैं, रिटन हो या ओरल हो, सही है ना? नेगेटिव बात को भी हमें पॉजिटिव तरह से शो करना होता है। ये कैसे करते हैं हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही एक लंबा चौड़ा टॉपिक है कि हाउ कैन वी डिलीवर नेगेटिव मैसेजेस इन पॉजिटिव वेज, फेवरेबल फीडबैक हासिल करना है ना। बिकॉज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन इज़ to get the favorable feedback at the end as well. All these things you are doing, you are giving the right message to the right person at the right place on the right time. But at the end, what do you want to get? Obviously you want to get a favorable feedback. So that favorable feedback comes when the message is right, the person is right. Favorable feedback क्या है? आपको दूध चाहिए, आपको दूध मिल गया, दिस इज़ द फेवरेबल फीडबैक। लेकिन ये तभी हो पाएगा ना जब आप दूध वाले के पास जाके दूध मांगो या उससे दूध खरीदो। अगर आप वेजिटेबल सेलर के पास जाओगे तो आपको फेवरेबल फीडबैक नहीं मिलेगा। वाकई भाई क्या हो गया, आप कहाँ आ गए? आप जाएँ मिल्क सेलर के पास जाएँ, आप मेरे पास क्यों आ गए? तो वो फेवरेबल फीडबैक तो नहीं हुआ ना, वो तो आपको नहीं मिला ना दूध वहाँ से, क्योंकि आपने गलत बंदे को जो डिलीवर किया था मैसेज, गलत मैसेज गलत बंदे को गलत जगह पे जाके डिलीवर किया। अच्छा, उसके बाद द 4 डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हैज़ 4 डायमेंशंस: स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट डू यू थिंक द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क इन दीज 4 डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेशन? स्पीकिंग इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एंड में दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एट द एंड, जब वीडियो एंड होगी तब मैं आपको दूंगा कि सबसे मुश्किल काम क्या होता है दुनिया के अंदर। सबसे मुश्किल काम इन चारों में से कौन सा है? मे बी लोगों के लिए स्पीकिंग हो, कुछ लोगों के लिए लिसनिंग हो, कुछ के लिए राइटिंग एंड कुछ के लिए रीडिंग, बट ऑन मेजोरिटी रिसर्च जो हुई है, सही है, व्हाट इज़ रिसर्च सेइंग, व्हाट आर द रिजल्ट्स, कि क्या इन चारों में से कौन सा सबसे मुश्किल टास्क होता है कम्युनिकेशन में। ये आगे चल के मैं आऊँगा इसी वीडियो के एंड में। नाउ कम्स टू द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। व्हाट आर द डिफरेंसेस? कम्युनिकेशन deals with all information except business, and business communication deals with business related information. Obviously everyone is somehow related to द बिज़नेस। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वो किसी का बिज़नेस होगा। अगर आप खुद बिज़नेस ऑनर हैं तो आपका बिज़नेस है। अगर आप प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपके डिफरेंट बिज़नेस से वास्ता पड़ता रहता होगा। या अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप स्टूडेंट हैं, तब भी आप ऑब्वियसली आपके ख़ानदान में कोई ना कोई बिज़नेस करता होगा या आपका किसी न किसी बिज़नेस से वास्ता पड़ता होगा, ठीक है ना, या पढ़ेगा अगर नहीं पढ़ा। तो बिज़नेस कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इफ़ यू आर इन एनी बिज़नेस you need effective communication skills. Communication means obviously business के अलावा हम जो भी शेयरिंग करते हैं इन्फॉर्मेशन की, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो मैं कोई बिज़नेस तो नहीं चला रहा, मेरा बिज़नेस नहीं है ये। दिस चैनल इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉर अर्निंग्स। आई वांट टू शेयर व्हाट आई लर्न फ्रॉम माय टीचर्स, ताकि आप अपने लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करें। अगर 1% भी आपको बेनिफिट होता है तो मेरे लिए ये एक अचीवमेंट है, एक कामयाबी है। Communication is less formal, indirect, unorganized, while business communication is more formal, direct and organized. It means that business communication has some structure. Business communication is a very formal, you have to be very formal while communicating with someone while you are in the business or you are doing a business or you are doing a job. Obviously आपका वास्ता पड़ता है आपके अपने बॉस से, आपके कोलीग से, आपके अपने जूनियर से,
So obviously you have to be more formal while interacting with all these persons. वो डायरेक्ट होती है, आप डायरेक्टली आप स्ट्रेट फारवर्ड होते हैं, आप घुमा फिरा के बात नहीं करते. कम्युनिकेशन जो हमारी नॉर्मल होती है हम उसमें लेस फॉर्मल होते हैं. वी आर वेरी इनफॉर्मल इन दैट बिकॉज हम अपने सोसाइटी में अपने दोस्तों में होते हैं, अपनी फैमिली में होते हैं. आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द जॉब ऑब्वियसली हम अपनी लाइफ को इन्जॉय करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर नॉट फॉर्मल, दीज आर इनफॉर्मल थिंग्स. हम जोक्स सुनाते भी हैं, हम हंसते भी हैं, हम मस्तियाँ भी करते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली द इनफॉर्मल थिंग्स. अनऑर्गेनाइज्ड, देयर इज़ नो स्ट्रक्चर यू हैव टू फॉलो. एक आम आदमी है, अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा नहीं है वो भी कम्युनिकेशन करता है ना, वो भी सबसे बात करता है. तो वही ये तो नहीं सोचेगा यार क्या स्ट्रक्चर है, क्या ऑर्गेनाइज्ड कैसे करके, कुछ भी नहीं. ऑब्वियसली अनऑर्गेनाइज्ड वे होता है, इनफॉर्मल होता है जब हम नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं. कम्युनिकेशन हैज़ डिफरेंट फॉर्मेट्स वाइल बिजनेस कम्युनिकेशन एज अ सर्टन फॉर्मेट्स. बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है. आप अपने फैमिली में हो, आपके बड़े भाई, आपके छोटा भाई, आपके फादर, आपके कज़न्स, आपकी अम्मी, आपकी सिस्टर्स, सबके साथ आपका अलग अलग बात करने का फॉर्मेट होता है. आप जब कज़न से बहुत ज़्यादा आप फ्री होकर बात करते हैं, आप बदतमीज़ी भी कर लेते हैं, शरारतें भी करते हैं. फादर के साथ, पेरेंट्स के साथ आप जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो अदब से बात करते हैं. अपनी सिस्टर्स और भाइयों के साथ आपका एक अलग लेवल होता है बात करने का. So there are different formats and these formats are defined by our society or the environment of our society or family. It depends. But in business obviously there are certain formats. मतलब ये है कि अगर किसी भी बंदे का बॉस है, वो किसी भी कंपनी में है, उसका बॉस है, तो हमें पता है वो कैसे बात करता होगा. ठीक है ना. ऑब्वियसली वो बॉस से कैसे बात की जाती है वो एक सर्टन फॉर्मेट है. या अपने कोलीग के साथ कैसे इंट्रैक्शन होता है एक अच्छे मैनेजर का. जैसे हम किसी से पूछते हैं यार एक अच्छा मैनेजर की क्या क्वालिटीज़ होंगी, आप 10 लोगों से पूछें तो 10 लोगों के जो आंसर्स होंगे उनमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होंगी. इट मीन्स देयर आर सम सर्टेन फॉर्मेट्स in the business while communicating with your colleagues or your bosses or your juniors. Mostly अच्छा communication mostly feelings or emotions based, while business communication no scope for personal feelings or emotions. बहुत सिंपल है. Communication may contain factuous information. Business communication deals with practical information. Obviously if you are in the business you need practical information on the basis of which you make decisions, and their decisions obviously will make or break your career. आपका कैरियर या आपका बिजनेस है, ऑब्वियसली आप डिसीजंस लेते हो. वो डिसीजन किस बेसिस पे लेते हो आप? प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो आप लोगे. आप अपने फैक्टियस इन्फॉर्मेशन पे नहीं जाओगे. आप मतलब आप अंदाजे से नहीं, आप तुक्के मार के नहीं डिसीजन लेते आप. कम्युनिकेशन जो हमारी नॉर्मल होती है लाइफ के अंदर, ऑब्वियसली हम अपने इंट्यूशंस को यूज़ करते हैं. हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर भी लड़ पड़ते हैं अपने दोस्तों से या अपने लव वन से. तो फैक्टिस इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आर देयर इन योर नॉर्मल लाइफ. बट इन बिजनेस obviously there is no room for factious information. There is only room for practical information which gives you the base through which you decide what to do now or what to do in the future. So all the decisions are based on practical information. Communication feedback is not so important in all cases, while in business communication feedback is more important. Why? In business obviously you deal with the customer. So feedback is important. You deal with the boss, so the feedback is important. You want your boss to be happy with you. You want your junior to be obedient, कि वो आपकी बात माने, जो आप टास्क दो वो टाइम पे पूरा हो, सेल्स टारगेट्स अचीव हो, कस्टमर सेटिस्फाइड हो, बॉसेस हैप्पी हो. ऑल दीज आर थिंग्स आर बेसिकली द फीडबैक. मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए तो फीडबैक है ना. ये सारे आप जो भी कम्युनिकेशन करोगे उनके साथ आप चाहते हो कि मुझे फीडबैक जो मिले वो फेवरेबल हो मेरे लिए. ठीक है, इन नॉर्मल लाइफ हम फीडबैक इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में इम्पॉर्टेंट हो. हम बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कोई जाता है कोई नहीं जाता है, किसी का फीडबैक अच्छा आता है किसी का बुरा आता है. अगर 10 में से एक दोस्त नहीं जा रहा, 9 दोस्त जा रहे हैं तो ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ठीक है, एक नहीं जा रहा उस चक्कर में 9 बंदे अपना प्लान कैंसिल नहीं करेंगे. क्योंकि कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, आप अपनी फैमिली में बैठ कर कोई सीरियस डिसीजन लेते हैं तो वो सीरियस डिसीजन इसलिए लेते हैं ताकि कोई आप अपने घर का मसला हल करना चाहते हैं, वहाँ फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है. लेकिन ऑल केसेस में नहीं होता, बिकॉज हम प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन की बेस पे नहीं काम कर रहे, हम इमोशंस और फीलिंग की बेसिस पे काम कर रहे हैं. तो फीडबैक
हर केस में इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन बिजनेस के अंदर तो हमारा पूरा काम ही फीडबैक पे चलता है ना. यू आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर इज लाइकिंग योर प्रोडक्ट, यू विल बी हैप्पी. दिस इज़ द फीडबैक. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. आपने घर पे खाना बनाया, किसी को पसंद नहीं आया, ठीक है, अब अगली बार नहीं बनाओगे वो चीज़, ख़त्म हो गई बात. आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की, उसके पीछे पूरी रिसर्च होती है, फिर आप उसको डेवलप करते हो, आपका पूरा डिपार्टमेंट काम करता है, मार्केटिंग करते हो. तो कस्टमर फीडबैक अगर नेगेटिव आता है कि जी हमें तो ये पसंद नहीं आया, तो आपकी कॉस्ट जो उस पर लगी है वो ज़ाया हो जाएगी. ऑब्वियसली आपको दुख होगा और हो सकता है कि आपके करियर पे भी इसका इफेक्ट पड़े. सो फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट. This is the process of communication. While we are communicating with someone, although inside the business or in our normal life, देखें, एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. सेंडर कौन है? जो बात कर रहा है, जो अपना मैसेज डिलीवर कर रहा है. रिसीवर वो जिसके लिए मैसेज डिलीवर हो रहा है, जो उसको रिसीव करके जिसके लिए मैसेज हमने बनाया और उसको हम भेज रहे हैं. जो सेंडर होता है वो इन कोड करता है मैसेज को. इन कोड का मतलब ये होता है कि वो उस मैसेज को जिस वे में डिलीवर करता है वो उसकी इन कोडिंग कहलाती है. अगर वो लिख के कर रहा है, रिटर्न कम्युनिकेशन करके थ्रू कर रहा है, या वो ओरली वर्बली कर रहा है, वो फ़ोन करके कर रहा है, बता रहा है, या वो फेस टू फेस मीटिंग करके बता रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली द इनकोडिंग प्रोसेस. यू आर इनकोडिंग योर मैसेज. आप अपने मैसेज को इनकोड कर रहे हो. आप पहले उस चीज़ को सोचते हो या कहीं से आपको कोई चीज़ पता चलती है, आप उसको इनकोड करते हो और उसके बाद आप उसको भेजते हो. ठीक है ना. इनकोडिंग इज़ बेसिकली ड्रेसिंग योर थॉट्स विद द मीनिंगफुल लैंग्वेज. आप अपने ख्यालात को मीनिंगफुल लैंग्वेज देते हो, उसको वर्ड्स देते हो. देन द यूज़ ऑफ दिस लैंग्वेज लाइक ओरल, रिटन, नॉन वर्बल, सो दैट इट बिकम्स द मैसेज. वो मैसेज बनता है. फिर क्या होता है, वो मैसेज जो है उसमें नॉइस हो सकती है. आप कोई मीडियम ढूंढते हो, हाउ टू डिलीवर द मैसेज. उस मैसेज को किसी मीडियम के थ्रू आप करते हो. वो मीडियम क्या हो सकता है? ऑब्वियसली मैंने बताया, लेटर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, या वो आप मोबाइल फ़ोन के थ्रू सेंड कर सकते हो, टेलीफोन के थ्रू कर सकते हो, चार्ट्स के थ्रू कर सकते हो, किसी डिवाइस के थ्रू कर सकते हो, या डायरेक्ट कर सकते हो. वो मीडियम होता है. और बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मैसेज होता है उसमें कोई बैरियर आ सकता है. रिसीवर तक पहुंचने से पहले कोई उसके अंदर कोई मसला आ सकता है. वो मसला इज़ बेसिकली दैट इज़ नॉइस. द ब्लॉक इन द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉइस एंड बैरियर्स. ठीक है ना. इसमें क्या क्या हो सकता है? दीज इंक्लूड डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल मैं आपको भी समझा रहा हूँ, बहुत आसान सी एग्जांपल है. आई एम टॉकिंग टू यू और आप मेरी बात अंडरस्टैंड नहीं कर रहे. हो सकता है कि आप इसको मिनिमाइज करके सुन तो रहे हो, लेकिन हो सकता है आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, फेसबुक देख रहे हो या कुछ और कर रहे हो, या कोई गेम खेल रहे हो. सो यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ. सो दिस इज़ a noise. This is the barrier for between my message and you. What I want you to understand, you are not understanding. You are listening, but you are not understanding. Maybe मेरी poor language हो, मैं सही समझा नहीं पा रहा हूँ, ये भी barrier हो सकता है. लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा हो, बार बार जो है वो लोडिंग कर रही हो बार बार यूट्यूब आपकी. ठीक है. लैक ऑफ ट्रस्ट हो सकता है कि आपको मेरी बात पे ट्रस्ट ना हो, तो आप मेरी मैसेज को इतना सीरियस नहीं लोगे. तो नॉइस का मतलब सिर्फ शोर नहीं है कि नॉइस जी बच्चे शोर कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है. नॉइस मीन एनीथिंग विच ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, द फ्लो ऑफ मैसेज इज़ नॉइस और बैरियर. उसके बाद क्या होता है, रिसीवर उसको रिसीव करके डी कोड करता है. रिसीवर, फॉर एग्जांपल आप रिसीवर हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यू आर द रिसीवर, सो यू आर डी कोडिंग माई मैसेज. डी कोडिंग इज डन बाय द रिसीवर ऑलवेज. ठीक है ना. Obviously, his decoding of the message depends upon his past background, perception, maybe the knowledge of the language, the understanding viewpoint, and the relation. Decoding may be reading, it may be listening, it may be understanding. अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, ये भी decoding है. अगर आप मेरी बात लिखी भी पढ़ रहे हो, ये भी decoding है. आप understand करो, ये भी decoding है. Anything you do to get my message is decoding. ठीक है ना. और उसके बाद आप मुझे फीडबैक दोगे. फीडबैक कैसे दोगे? फीडबैक ज़रूरी नहीं कि आप मुझे बताओ कि जी मुझे समझ आ गया. अगर आपको समझ आ गया, दिस इज़ द फीडबैक. आपको मेरा आइडिया समझ आ गया, आपने उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, दिस इज़ द फीडबैक.
आप किसी को खाना बनाना सिखाते हो, उसे खाना बनाना आ जाता है, दिस इज़ द फीडबैक. Feedback, when the purpose of communication is achieved by the sender, it is the feedback. It may be favorable, it may be non-favorable, unfavorable. So to get the favorable feedback, well, you have to do, मैंने पीछे बताया, the purpose. Right message, right time, right person, right place. ये 4 चीज़ें करोगे तो favorable feedback मिलेगा. Otherwise, the favorable feedback, you cannot get it. It will be negative. It will, you will not have. आपके पास मतलब ये कि आप नहीं, मतलब आपका पर्पस फेल हो जाएगा ना. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. आई होप आपको समझ आया होगा, आपने डिकोड अच्छे से किया होगा. देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. Verbal communication means you are using words, you are using sentence, you are using grammar. It may be written, it may be oral. Written भी हो सकता है, oral भी हो सकता है. In business communication, written communication is very important because it is evidence based. business में कोई भी चीज़ लिखे बगैर हम उस पे काम नहीं करते. आप चेक पे साइन नहीं करोगे. आप बैंक चले जाओ, बोलो मेरा अकाउंट है, आपको पैसे ऐसे नहीं देगा. वो बोलेगा आप चेक साइन करें, ठीक है ना. रिटर्न कम्युनिकेशन है वो, आप चेक साइन करते हैं. इट मीन्स यू आर गिविंग ऑर्डर टू द बैंक टू पे दिस अमाउंट टू दिस पर्सन, ठीक है ना. सो दिस इज़ द रिटर्न ऑर्डर. सो रिटर्न कम्युनिकेशन इन द बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ एविडेंट बेस्ड. उसको एज अ एविडेंस यूज़ किया जाता है कि जी ये लिखा हुआ है तो हमने ये ऐसा किया. ओरल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली बहुत ही आसान है. आप बात करते हो, आप स्पीक करते हैं, दिस इज़ ओरल कम्युनिकेशन. Non-verbal communication is using your body language, your gestures and silence. You tape your hands for impatience. ठीक है ना. आप किसी के चेहरे से लगता है इसको बहुत गुस्सा आया हुआ, या कोई ऐसी हरकत करता है गुस्से में आके, ठीक है ना. कुछ लोग गुस्से में जो है वो अपनी मुट्ठियाँ भेजते हैं, ठीक है ना. ये गुस्से का इजहार है. इट इज़ आल्सो द कम्युनिकेशन. ही इज़ शेयरिंग व्हाट ही इज़ फीलिंग राइट नाउ, ठीक है ना. ही इज़ एंग्री, ही वांट अस टू नो कि वो एंग्री है, तो वो बॉडी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है. और जैसे बच्चा होता है छोटा जो बोल नहीं सकता, सो हाउ डज मदर नो कि बच्चा जो है वो भूखा है. बच्चा वो बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से समझती है कि बच्चे को दर्द हो रहा है पेट में, या बच्चे को भूख लगी है, या बच्चे को कोई तकलीफ़ हो रही है, ठीक है ना. सिमिलरली साइलेंस या जेस्टर्स जो है वो हमारे जो फेस इंप्रेशन होते हैं, या खामोश रहना भी एक कम्युनिकेशन है. फॉर एग्जांपल आप कुछ लोगों की खामोशी हाँ होती है, कुछ लोगों की खामोशी ना होती है. आप किसी से पूछते हो आप चलोगे मेरे साथ, मुझे जाना है कहीं किसी काम से, कोई खामोश रहता है तो आप समझे तो ये नहीं जाना चाह रहा. इट मीन्स ही इज़ कम्युनिकेटिंग विद यू बाय हिज साइलेंस. और एक मज़ाहिया सी बात मेरे जहन में आ गई कि कुछ लोग कहते हैं कि लड़की की ना में भी हाँ होती है, या खामोशी का मतलब जो है हाँ है. तो वो जो मतलब निकाला गया इट इज़ बेसिकली अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ठीक है, हो सकता है हाँ ना हो उसका मतलब ना हो, बट साइलेंस इज़ आल्सो द मीन ऑफ कम्युनिकेशन. देन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. इफ़ यू आर टॉकिंग विद योर बॉस, अगर आप अपने से किसी ऊपर के बंदे से बात करें, वो ऊपर का बंदा एज में बड़ा हो तो भी वो अपवर्ड कम्युनिकेशन है. आपके पेरेंट्स हो गए, आपका बॉस है, ठीक है ना, आपसे सीनियर है, सही. ऑल द पर्सन विच आर सीनियर, और वो आपके जो है वो आप किसी भी रिलेशन में आपसे वो बड़े आते हैं, मतलब पोजीशन की वजह से, या एज की वजह से, या रिलेशन की वजह से. So if you are communicating with them, it is upward communication. If they are communicating with you, it is downward communication. Vertical and horizontal, upward and downward vertical ही है, ठीक है ना. Vertical communication का यही मतलब है कि upward and downward. Vertical means जो ऊपर से नीचे की तरफ हो या नीचे से ऊपर की तरफ हो, both are vertical, 90 डिग्री जिसे हम कहते हैं. Horizontal का मतलब होता है जब आप किसी अपने बराबर के बंदे से बात करो, आपका कोलीग है, आपका दोस्त है, आपका कज़न है, ठीक है ना, जो आपके लेवल पे है, किसी भी आप लेवल पे पोजीशन की वजह से है, या वो एज की वजह से है, ठीक है, या वो रिलेशन की वजह से, किसी वजह से अगर वो आप उसके साथ आप उसके लेवल आपका उसका लेवल मैच करता है, तो ऑब्वियसली यू आर सम हाउ फॉर्मल विद हिम मे बी, ठीक है ना, आपका दोस्त हो सकता है. इट इज़ द हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन.
ये 4 तरह की हम कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं बिज़नेस के अंदर। अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। इसके अलावा भी कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स हो सकती हैं, जैसे फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल मीन्स के हम क्या करते हैं बिज़नेस के अंदर, ऐसे वर्ड्स, ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो मैनेजर के साथ, हमारा मैनेजर है, सुपरवाइज़र है, डायरेक्टर है, ओनर है, सो इट इज़ फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या है, हमारे दोस्त हैं, हमारे कज़न्स हैं, फैमिली में हम बात करते हैं अपने, तो वो क्या है बेसिकली, वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बेसिकली, कि इन ऑरल कम्युनिकेशन बेसिकली some facts are there which are related to the communication. In oral communication, 30% of the information is lost in each transmission, because in oral communication repetition, there is no repetition. अगर जैसे मैं भी आपसे बात करूँ ना, ये सारी ओरल कम्युनिकेशन भी थी और रिटन कम्युनिकेशन भी थी, लेकिन ओरल ज़्यादा थी। एक स्लाइड पे मैंने अच्छा खासा बोला ओरल कम्युनिकेशन। अब इसमें 30% इन्फॉर्मेशन आपने लॉस्ट कर दी। आप 30%, अगर आपने पूरा कंसंट्रेशन भी दिया तो आप 30% आपने लॉस्ट कर दिया, ठीक है ना। इवन रिटन कम्युनिकेशन इज सब्जेक्ट टू सम लॉस ऑफ मीनिंग ऑब्वियसली। if there is a slide in front of you, all these slides which I have made is in front of you. If I am not using my language, if I am not using my oral skills, अगर मैं explanation ना दूँ, how can you understand all these things? Because without meaning, if something is written and you don't know the meaning, or you don't know the depth knowledge about the word or the sentence or the paragraph which is written in front of you, so how can you extract the meaning from it? You need someone to explain you about the paragraph or about the sentence which is in front of you, like this type of communication. All these things are there. I have spent more than 5 minutes on this slide to explain the meaning, or to explain the definitions of all these 4 points. So in only written communication, meanings are lost. Some meanings are lost. Maybe someone is well informed about the communication, there is no need to explain him. But if you are unaware of communication topic, it is very difficult to you to understand by just watching the slides. That's why written and oral is, both are very important, and the mixture of both is obviously gives you the almost 100% understanding. So that's the end of the session of introduction to communication. I tried my best to explain in my simplest words the definition of communication. Maybe बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं। मिसिंग इसलिए है क्योंकि ये कोई क्लास नहीं है, कोई ये मतलब ये कोई कॉलेज की क्लास नहीं, यूनिवर्सिटी की क्लास नहीं है, कोई कोचिंग क्लास नहीं है, कोई ऑनलाइन क्लास नहीं। दिस इज़ जस्ट द creating the concept, the basic concept of communication. If you want to know more about the communication, आप बुक्स में पढ़ें, सिर्फ डेफिनेशन पे पूरी बुक्स लिखी गई हैं। मैंने जस्ट आपको गाइडलाइन दी, जस्ट आपको मैंने कॉन्सेप्ट दिए, जस्ट आपको मैंने ये रियलाइज़ करवाया कि व्हाट द कम्युनिकेशन इज़। और इस पर मैं मज़ीद वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट वीडियो। द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द बिज़नेस हम डिस्कस करेंगे कि एक बिज़नेस के लिए कम्युनिकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। आप फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस करते हैं या आप जॉब करते हैं, तो बिज़नेस के अंदर कम्युनिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। आज तो हमने ये डिस्कस किया ना कि बिज़नेस में इतने तरह की कम्युनिकेशन होती है, बिज़नेस में जो है वो कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। बट हम क्या लर्न करेंगे कि बिज़नेस में कितना इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें तमाम दोस्तों के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे हो सकते हैं आपके ऐसे फ्रेंड्स हों जिनको ये हेल्प करे आगे इनकी लाइफ में। सो कीप इन टच, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।